Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel MBBS Study Finder. Today we are going to start chapter number 3, Growth of General Bacteriology. Chapter number 1 and 2 description you can get from the I button or in the description, link is given. Now we are starting chapter number 3, Growth. Growth means how the bacteria increase in number. We will discuss in this chapter how the bacteria divides, how the bacteria reproduce, in which conditions bacteria grow better, what are the conditions they require for their growth. Let's start with growth cycle. Growth cycle. Bacteria reproduce by a process known as binary fission. Binary fission is a process in which one parent cell divides into the two progeny daughter cells. One bacteria divides into two divides into four divides into 16. So this type of growth is called exponential growth or logarithm growth. फर्स्ट जनरेशन में एक बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा. सेकंड जनरेशन में 4 बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे. These are the exponential growth. So one bacteria will produce 16 bacteria after 4 generations. Doubling time of bacteria vary करता है from one bacteria to other species to species vary करता है. For example, we can see E. coli divides into 2 in 20 minutes, but Mycobacterium tuberculosis divides into 2 in 18 hours. So exponential growth or doubling time of the organisms vary करता है from species to species, and this helps the organisms to produce large number of species in a very shorter period of time. For example, E. coli produce over 1,000 progeny daughter cells in 3 hours and about 1 million in about 7 hours. Doubling time doesn't depends only on the species, but it also depends upon the amount of nutrient, temperature, pH, and environmental factor that affects the growth of the bacteria. Then we will discuss the 4 major phases of the growth of bacteria. Let's suppose we inoculate our bacteria into our nutrient medium and bacteria is counted for frequent intervals. Then we get a growth curve that is in like something this figure 3.1. This show A portion, B portion, C portion, and D portion graph. A is the lag phase, B is the log phase, C is the stationary phase, and D is the declining phase. So we will discuss what are these phases. First phase is lag phase, in which the bacteria have metabolic activity. Bacteria have high metabolic activity, but bacteria can't be able to divide. It means it's preparing itself for a division in this phase. This phase lasts for from few minutes to many hours. Second phase, the B phase, is the log phase, the logarithm phase. It means the phase in which the bacteria divides. One bacteria divides into two. One of the most important significance of this phase is that all the antibacterial drugs that we use to kill bacteria can be useful, can be beneficial to kill bacteria in this phase. For example, beta-lactam drugs such as penicillin act during this phase because the drugs are effective when the cell is making peptidoglycan. When the cell is making its own cellular wall, cell wall or cell membrane, antibacterial drugs can degrade at their dividing phase. This phase is also known as exponential phase. The next is stationary phase. Stationary phase occurs when जब बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो जाती है, बैक्टीरिया टॉक्सिक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है. सो द नंबर ऑफ न्यू प्रोड्यूसिंग सेल्स बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं टू द नंबर ऑफ सेल्स जो कि डाई कर देते हैं. एक स्टेडी स्टेट मेंटेन हो जाती है, जिसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं. इस स्टेशनरी फेज को प्रिवेंट करने के लिए सेल्स को एक स्पेशल अपरेटस में ग्रो करते हैं जिसे कीमोस्टैट कहते हैं. कीमोस्टैट एक ऐसा मीडियम होता है इसमें फ्रेश न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं बार बार कॉन्टिन्यूसली, और वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉन्टिन्यूसली रिमूव किए जाते हैं सो दैट बैक्टीरिया लो फेज में ही स्टेशनरी फेज में एंटर ना हो. नेक्स्ट लास्ट फेज इज डी इज डिक्लाइन और डेथ फेज, जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है. एज द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया सेल्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे थे वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स दैट आर डाइंग. सो इट इज अ डिक्लाइन फेज, इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज एरोबिक एंड एनारोबिक ग्रोथ. एरोबिक ग्रोथ क्या होती है? ये बैक्टीरिया की ऐसी ग्रोथ होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. एनारोबिक ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. सो अब ऑक्सीजन क्या करती है, हाउ बैक्टीरिया यूजेस ऑक्सीजन, वो हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करती है इन द फाइनल स्टेप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. लास्ट स्टेप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर. दिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस टू टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जिनमें से एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सेकंड इज फ्री रेडिकल सुपरऑक्साइड. सो दीस टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया. इसके लिए बैक्टीरिया में दो स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, एक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और दूसरी है कैटालिस. जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करते हैं उनमें ये दो एंजाइम्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि ऑक्सीजन के रेडिकल्स को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करती हैं. अगर किसी बैक्टीरिया में ये दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो वो बैक्टीरिया
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकता, ना ही ऑक्सीजन को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन यूज करेगा तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि इसकी ग्रोथ को नहीं होने देंगे बल्कि इसे किल कर देंगे। सो फर्स्ट ही सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये एंजाइम क्या करती है, जो ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसे कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोजन पर में। देन कैटालेज एंजाइम कन्वर्ट्स द हाइड्रोजन पर इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इफेक्ट नहीं करते बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की जिनके लिए ऑक्सीजन मैंडेटरी रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन के बगैर वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें ऑब्लिगेट एंड एरोब्स कहते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स सच एज माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे रिक्वायर होती है ऑक्सीजन फॉर देयर एटीपी जनरेशन सिस्टम, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करती है। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, एनाएरोब्स मींस दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर growth, but facultative refers that if oxygen is present, they utilize oxygen for their growth. But if oxygen is not present, so they use fermentation pathway to synthesize ATP in the absence of sufficient oxygen. जब इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, बट अगर उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं मिल रही तो वो फर्मेंटेशन पाथवे यूज करेंगे एटीपी सिंथेसिस के लिए। थर्ड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, एनारोब्स हैं दैट कांट बी ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सच एज क्लोस्ट्रीडियम टेक्नाइल, क्योंकि इस बैक्टीरिया में दोनों एंजाइम्स जो हमने पहले पढ़ी थी जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको रिमूव करती हैं, वो इन बैक्टीरिया में एब्सेंट होती हैं, सो दे कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन्हें हम ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव तो कर सकते हैं बट दे कांट बी एबल टू ग्रो। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है सेवरल पैथोजेंस को, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंशिएट करने में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया की दोनों स्पीशीज गोनोराया एंड मेनिंजाइटिस में डिफरेंस करने के लिए हम फर्मेंटेशन को यूज करते हैं, आइदर ग्लूकोज और मेंटोज फर्मेंटेशन को। इस तरह ई कोलाई को साल्मोनेला और शिगेला में से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लैक्टोज फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर टू पायरोविक एसिड देन यूजुअली टू लैक्टिक एसिड। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे शुगर यानी कि ग्लूकोज और माल्टोज जो है वो पायरोविक एसिड में, देन पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड में डिफरेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो लैक्टोज एक डाइसैकेराइडिक कंपाउंड है जो कि ग्लूकोज और लैक्टोज में डिवाइड होगा एंड देन मस्ट बी क्लीव्ड बाय ग्लाइकोसाइडेसिस। ग्लाइकोसाइडेसिस वो एंजाइम्स है जो कि इसे डिग्रेड करेंगी। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइटिक साइकिल्स भी कहते हैं। कैसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फैकल्टेटिव बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन पाथवे यूज कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया में एटीपी जनरेशन के लिए यूज होता है। अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पायरोविक एसिड में, पायरोविक एसिड देन ब्रेक डाउन होगा थ्रू द कैप्साइकिल में चल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है, देन द एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगी। इस तरह कैप्साइकिल जो है वो मोर एटीपी प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू फर्मेंटेशन प्रोसेस। But if the bacteria have not sufficient supply of oxygen, तो क्या करेगा कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा एंड पायरुवेट देन कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड्स। कुछ एरोब्स होते हैं जो कि जिन एरोब्स दे कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सच एज सीडोमोनास एरोजिनोसा, ये ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर जो कि क्रेब साइकिल में एंटर हो सकते हैं, या फिर डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड के थ्रू ये क्रेब साइकिल में एंटर होकर एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। अब फर्मेंटेशन टेस्ट होते हैं कुछ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, आइदर द बैक्टीरिया इज फर्मेंटिंग और आइदर द बैक्टीरिया इज नॉट फर्मेंटिंग। सो इसके लिए हम सबसे पहले हमें पता है कि शुगर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है जो कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और लैक्टिक एसिड एक एसिड है तो ये किसी भी सॉल्यूशन को किसी भी मीडियम को एसिडिक कन्वर्ट कर देगा। सो हम इसकी टेस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए पीएच इंडिकेटर्स यूज करते हैं जिसमें हम मोस्टली फिनोल रेड यूज होता है। अगर शुगर की फर्मेंटेशन हो रही है तो एसिड प्रोड्यूस होगा पायरुविक एसिड से, लैक्टिक एसिड बनेगा और मीडियम फिनोल रेड इंडिकेटर जो है वो एसिड मीडियम में येलो कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर फर्मेंटेशन नहीं हो रही तो फिनोल रेड जो इंडिकेटर है वो रेड कलर रहेगा क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, बजाय के ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, क्रेब साइकिल में एंटर होगा, वहां से एंड प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। सो देयर इज नो एसिड फॉर्मेशन अगर फर्मेंटेशन नहीं हो रही, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन नहीं होती, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एसिड्स प्रोड्यूस नहीं होते और इंडिकेटर जो है वो रेड कलर में ही रहेगा, येलो कलर में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयरन मेटाबॉलिज्म इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए एसेंशियल एंजाइम्स रिक्वायर होती हैं जो कि साइटोक्रोम्स होती हैं, फ्लेवोप्रोटीन्स होती हैं, और ये एंजाइम्स आयरन रिक्वायर करती हैं, इन्हें ग्रो करने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। सो बैक्टीरिया के पास आयरन नहीं होता, सो दे कैन
सो बैक्टीरिया जो है वो होस्ट सेल से आयरन जो है वो लेता है अपना, लेकिन उसके लिए से अब एक ह्यूमंस जो होस्ट सेल्स होते हैं उनमें आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, एज अ रिजल्ट आयरन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता बैक्टीरिया को। सो बैक्टीरिया आयरन को ऑब्टेन करने के लिए स्पेशल आयरन बाइंडिंग कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टीरोफोर्स। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बैक्टीरिया का जो कि बैक्टीरिया सक्रीट करते हैं सिट्रोफोर्स। ये सिट्रोफोर्स क्या करते हैं, ये जाते हैं होस्ट सेल्स में एंड उसके बाद आयरन को कैप्चर करते हैं, उसे चीलिएट करते हैं अपने साथ और बाद में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के थ्रू बैक्टीरिया में एंटर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जब ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आयरन जो है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया इन आयरन को यूज कर लेता है अपनी साइटोक्रोम्स एंजाइम्स बनाने के लिए एंड देन अपना मेटाबॉलिक पाथवे कंटिन्यू रखता है। यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पास्ट एससीक्यूज जो कि आपको हेल्प करेंगे इन योर टेस्ट और जो भी आप तैयारी के लिए कर रहे हैं। So question number 1 है what are the different phases of growth of bacterial curve? Give cellular events that take place in each phase. So हमें पता है कि bacterial growth curve के 4 phases होते हैं, lag, log, stationary and decline phase, और उसकी आपने डायग्राम फिगर 3.1 इसमें बना देनी क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, उसमें म्यूटेशन आ सकती हैं, ट्रांसफर कैसे होता है, कौन कौन से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बैक्टीरिया यूज करता है इन द जेनेटिक मटेरियल। So genetic material of typical bacterium such as E. coli consists of a single DNA molecule होता है, सिंगल सर्कुलर DNA molecule होता है, approximately 5 into 10 power 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेस पेयर्स 200 ऑलमोस्ट 200 प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है, उसकी मॉलिक्यूलर वेट 5 into 10 power 8 होता है। ह्यूमन के सेल में अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 power 9 बेस पेयर्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर सिंगल डीएनए होता है, सो दे आर डिप्लॉइड्स। दे हैव ओनली सिंगल क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम पर हर जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। इट्स मीन उनके क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और हर पेयर पर हर जीन का एक पेयर होता है। सो हैप्लॉइड सेल्स में अगर कोई जीन म्यूटेट होती है तो वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं करती, उनका वो फीचर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेट वो लॉस हो जाता है फ्रॉम दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया, बिकॉज उनके पास जीन की कॉपी नहीं होती, उनके पास जीन एक ही जीन होता है। अगर उसमें म्यूटेशन आएगी तो वो ट्रेट ही खत्म हो जाएगा बैक्टीरिया से। जबकि डिप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, जीन्स भी पेयर्स में होती हैं। अगर एक जीन यानी एक कॉपी ऑफ जीन म्यूटेट हो गई है तो दूसरी कॉपी ऑफ जीन जो है वो एक्सप्रेस कर जाएगी और म्यूटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, फीचर लॉस नहीं होगा। सो व्हाट इज म्यूटेशन इन बैक्टीरिया? म्यूटेशन इज अ चेंज इन डीएनए बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए पर जो बेस का सीक्वेंस है अगर उसमें कोई भी चेंजिंग आएगी तो दैट विल बी अ म्यूटेशन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इंसर्ट हो जाएंगे उस सीक्वेंस में और जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी उसकी फिनोटाइप चेंज हो चुकी होगी। तो म्यूटेशन इज द बेस सीक्वेंस of DNA is changed, which results in insertion of different amino acids into a protein that and the appearance of altered phenotypes. अब म्यूटेशन किस तरह हो सकती है? What are the changes that will be occur in mutation? So there are 3 molecular changes discussed here. First is base substitution. It's mean कोई भी base pair, कोई भी एक single base replace हो जाएगी by another base जो कि हमें required नहीं है. This occur when one base is inserted in the place of another. So ये कब होती है? बेस सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कब हो सकता है? एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन पर बेस सब्स्टिट्यूशन 2 तरह से हो सकती है। फर्स्ट इज के आइदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसमें कोई एरर आ गया है, डीएनए पॉलीमरेज सही से वर्क नहीं कर रही, या फिर कोई म्यूटेशन है, कोई ऐसा एजेंट है जो कि उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेस चेंज करती है। एज अ रिजल्ट जो उसकी टेम्पलेट बेस एंटर होनी थी वो गलत बेस एंटर हो जाए, तो ये होती है बेस सब्स्टिट्यूशन। अब बेस सब्स्टिट्यूशन भी 2 तरह से म्यूटेशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। अगर तो कोडोन इज अ पेयर ऑफ 3 बेसिस, अगर उसमें से कोई एक बेस रिप्लेस हो गई है बाय अनदर बेस, सो दैट कोडोन विल refers to an other amino acids, not the same amino acid. सीक्वेंस चेंज हो गया जब कोडोन का तो बेसिस चेंज हो गया, एज अ रिजल्ट कोई डिफरेंट अमाइनो एसिड उसकी जगह इंसर्ट हो जाता है। डिफरेंट अमाइनो एसिड इंसर्ट होने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड मिससेंस म्यूटेशन। अगर दूसरी बेस सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसी होती है जिसमें बेस सब्स्टिट्यूट हुई है तो टर्मिनेशन कोडोन्स जो भी टर्मिनल 3 टर्मिनल कोडोन्स हैं, यूएजी बन गया है, एयूजी बन गया है, कोई भी टर्मिनेशन कोडोन बन गया है तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पर स्टॉप हो जाती है। प्रीमेच्योर प्रोटीन्स बनती हैं या इतनी स्मॉल प्रोटीन बनती हैं वो खुद ब खुद डिग्रेड हो जाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशंस। नॉनसेंस म्यूटेशन एंड द मिससेंस म्यूटेशन ये मैनिफेस्टेशंस हैं बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस की। सो एज अ रिजल्ट प्रोटीन का फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है।
सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन, सेकेंड मॉलिक्यूलर चेंज है, वो हो सकती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि वन और मोर बेस पेयर यहाँ तो ऐड हो जाते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो, इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस, या फिर वन और मोर बेस पेयर डिलीट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट रीडिंग फ्रेम जो राइबोसोम रीड करते हैं मैसेंजर आरएनए को, आइदर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को जो रीड आउट हो रहा होता है, थ्री थ्री बेस पेयर्स बन जाते हैं। जब उसमें एक बेस पेयर ऐड हो जाएगा तो टू बेसिस ऐड हो गई हैं सपोज, तो सीक्वेंस ऑफ रीडिंग चेंज हो जाता है अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए। फिर सीक्वेंस ऑफ जब रीडिंग चेंज हो जाता है तो एज अ रिजल्ट रॉन्ग अमाइनो एसिड्स इंसर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन्स हो जाती हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज व्हेन वन और मोर बेस पेयर्स आर एडेड या वन और मोर बेस पेयर्स आर डिलीटेड। एज अ रिजल्ट क्या होता है, रीडिंग फ्रेम, राइबोसोम्स जो रीडिंग फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है, रॉन्ग अमाइनो एसिड्स इंसर्ट होते रहते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाती है। थर्ड मॉलिक्यूलर चेंज क्या आ सकती है, ट्रांसपोसोनल इंसर्शन सीक्वेंस। अब ट्रांसपोसोन्स आपको पता है कि जंपिंग चेन्स होती हैं और इंसर्शन सीक्वेंस भी टाइप ऑफ ट्रांसपोसोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आकर डीएनए के सीक्वेंस में एड अप हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट सारा सीक्वेंस ऑफ रीडिंग दोबारा से चेंज हो जाता है और इससे क्या होता है कि जीन दे कैन कॉज प्रोफाउंड चेंजेस इन जीन विच इनटू विच दे इंसर्ट एन एडिशन जीन। जिस जीन में भी ट्रांसपोसोन के इंसर्शन सीक्वेंस इंसर्ट होंगे उस जीन में तो चेंजेस आएंगी, लेकिन जो उसके साथ वाली जीन्स हैं, राइट और लेफ्ट पर जो जीन्स हैं वो भी चेंजेस शो करेंगी। एज अ रिजल्ट जो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर कोई स्पेसिफिक इंजाइम के लिए कोड करी थी तो उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। अब म्यूटेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं, किन किन रीजंस की वजह से म्यूटेशन हो सकती हैं। दैट आर थ्री मेजर रीजंस, आइदर दे आर केमिकल्स, रेडिएशन और वायरस। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल किस तरह म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं। सम केमिकल सच एज नाइट्रस एसिड्स, अल्काइलिंग एजेंट्स, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंज कर देते हैं या फिर किसी भी बेस की बॉन्डिंग रॉन्ग बेस से करा देते हैं। एग्जिस्टिंग बेस अल्टर द existing base so that it form hydrogen bond preferentially with the wrong base. For example, adenine would no longer pair up with thymine but with cytosine. हमें पता है कि एडनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करती है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंज कर देंगे, एडनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है, बट अगर एडनिन के हाइड्रोजन बॉन्ड 3 कर देंगे तो इट्स मीन इन एडेनिन ने बाइंड करना है साइटोसिन या गुआनिन के साथ, क्योंकि साइटोसिन और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं जबकि एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन चेंज करने से क्या होगा कि बेस रॉन्ग बेस के साथ अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट है केमिकल सच एज 5 ब्रोमो यूरासिल। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बेस एनालॉग्स के तौर पर एक्ट करते हैं। बेस एनालॉग्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल बेसिस से रिजेंबल करते हैं। नॉर्मल बेसिस 4 हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन या फिर यूरासिलिन आरएनए होती है। तो अगर कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट जो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जो नॉर्मल बेसिस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल बेसिस की जगह अगर केमिकल अटैच हो जाएंगे तो भी म्यूटेशन आ सकती है। सच एज हम यहाँ देख लेते हैं 5 ब्रोमो यूरासिल जो है वो इंसर्ट हो जाता है इन द प्लेस ऑफ थायमिन, क्योंकि ब्रोमो यूरासिल की एफिनिटी विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद थायमिन लेस होती है एज कम्पेयर टू गुआनिन। सो 5 ब्रोमो यूरासिल जो थायमिन की प्लेस में आ जाता है और देन बाइंड्स विद द गुआनिन और साइटोसिन। सो 80 पेयर एडेनिन थायमिन बेस पेयर बनने के बजाय गुआनिन साइटोसिन बेस पेयर बन जाता है। एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो इस बेस एनालॉग के मैकेनिज्म पर एक्ट करती हैं और फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती हैं। थर्ड हम केमिकल डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है सम केमिकल सच एज बेंजीपीरीन। बेंजीपीरीन कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टिंग डीएनए बेसिस के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं और फ्रेंडशिप म्यूटेशंस कराते हैं। इट्स मीन जैसे एड अप हो जाती है, जैसे फ्रेंडशिप म्यूटेशन में बेस पेयर ऐड या डिलीट हो जाते हैं, इसी तरह ये वाले केमिकल्स भी जाकर डीएनए बेसिस की सीक्वेंस में ऐड अप हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, रीडिंग सीक्वेंस चेंज होता है राइबोसोम्स में और इनएक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। केमिकल्स बेंजीपीरीन्स लाइक केमिकल्स जो टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होते हैं। सम केमिकल जो कि कार्सिनोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इंटरकैलेट बिटवीन एडिशन बेसिस थर्ड डिस्ट्रॉइंग द डीएनए सीक्वेंस। सेम लाइक वो डीएनए सीक्वेंस में कहीं भी इंसर्ट हो जाएंगे और डीएनए का सीक्वेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, डीएनए सीक्वेंस की रीडिंग चेंज हो जाती है, एज अ रिजल्ट इनएक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। नेक्स्ट है ये हमने पढ़ा है केमिकल्स दैट कॉज म्यूटेशन। नेक्स्ट है एक्स-रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दैट कैन कॉज म्यूटेशन। अब एक्स-रेज हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जो कि डीएनए को डैमेज ही कर देती हैं। अब डीएनए कैसे डैमेज होता है, डीएनए 3 मेथड से डैमेज होता है। फर्स्ट, आइदर दे ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड जो कि इसकी कार्बन बैकबोन में प्रेजेंट होता है, राइबोस फॉस्फेट चेंज होती है, इसकी बैकबोन होती है डीएनए की, उसके कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। एज अ रिजल्ट डीएनए के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड मैकेनिज्म जिसके थ्रू एक्स-रेज
म्यूटेशन कॉज करती हैं वो क्या हो सकता है कि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करा देती हैं, फ्री रेडिकल्स बेसिस पर एक्ट करेंगे, बेसिस को डिग्रेड कर देंगे। थर्ड मैकेनिज्म है आइदर दे altering the electrons in the bases and thus changing their hydrogen bonding. Third the same mechanism hydrogen bonding change कर देंगी, wrong bases एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, so एक weak DNA बनेगा जो कि खुद ही डिग्रेड कर जाएगा। सेकेंड है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी म्यूटेशंस कॉज करती हैं, ये लो एनर्जी रेडिएशन होती हैं एज कम्पेयर टू एक्स रेज, बट स्टिल दे कैन कॉज डिग्रेडेशन ऑफ द डीएनए। They can cause cross-linking of adjacent pyrimidine bases to form diamonds. So अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं, बेसिस को पेयर में कर देती हैं, पायरिमिडीन बेसिस मिलकर डायमंड्स बना देंगी। एज अ रिजल्ट इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से डीएनए रेप्लिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। जब भी डायमंड्स बनते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाती। नेक्स्ट थर्ड हमने पढ़ा था, थर्ड मेन कॉज हो सकती हैं वायरसेस सच एज बैक्टीरियल वायरसेस। बैक्टीरियल वायरसेस भी हाई फ्रीक्वेंसी म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाते हैं, जिससे जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अगर ये डीएनए जो है वो वायरस का डीएनए जो है वो डिफरेंट साइज पर इंसर्ट करे तो डिफरेंट म्यूटेशन वेरियस जीन में म्यूटेशन आ सकते हैं। दीज म्यूटेशन आइदर बी फ्रेम शिफ्ट, अगर वो इंसर्ट कर जाएंगे, या फिर अगर उनमें से कोई सीक्वेंस डिलीट कर देंगे, बैक्टीरिया के सीक्वेंस में से कोई भी सीक्वेंस डिलीट कर देंगे तो डिलीशन के प्रोसेस के थ्रू म्यूटेशन हो जाती हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन है दैट इज कॉल्ड कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस। मेडिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस हैं, यूजुअली हम वैक्सीन्स बनाने के लिए इन म्यूटेशंस को और यूज करते हैं। These are the mutations that express only when the bacteria or the microorganism under certain condition, किसी एक specific condition में ये mutations जो है वो express करेंगी। For example, some condition lethal mutations are temperature sensitive. It means that they are, for example, temperature sensitive organisms जो है वो low temperature पर replicate कर सकते हैं, for example 32 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन high temperature पर temperature sensitive organism high temperature restrictive temperature 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर म्यूटेशंस हो जाएंगी, अमीनो एसिड्स चेंज हो जाएंगे, प्रोटीन फंक्शन नहीं कर सकेगी नॉर्मली एट 32 डिग्री सेल्सियस पर, 32 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मली फंक्शन करती रहेगी, बट जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा अमीनो एसिड सीक्वेंस में प्रोटीन जो बनी होगी वो डीनेचर हो जाएगी, एज अ रिजल्ट कन्फर्मेशन चेंजेस हाई टेम्परेचर पर आ जाएंगी। सच स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करते हैं कि ये 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो नहीं कर सकते, बट दे कैन ग्रो एट 32 डिग्री सेल्सियस। सो हम वैक्सीन बनाएंगे ऐसे स्ट्रेन्स को लेकर जो 32 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो कर सके। अब जब भी एक वैक्सीन दी है जिसने वीकेंड इन्फ्लुएंजा वायरस पेशेंट को दे दिया, अब ये वैक्सीन जो है अगर ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाता है, पास आउट हो जाता है टू द लंग्स, तो लंग्स में ये ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने एक ऐसा स्ट्रेन दिया है वैक्सीन के थ्रू जो 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो ही नहीं कर सकता। अब लंग्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो लंग्स में ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, बट 32 डिग्री सेल्सियस मोस्ट टेम्परेचर पर ये ग्रो कर जाएगा, हमारी बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि पेशेंट इम्यून हो जाएगा टू दैट स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद इन द बैक्टीरियल सेल एंड बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। विद इन द बैक्टीरियल सेल मीन्स कि डीएनए एक बैक्टीरिया के एक बैक्टीरियल सेल्स में ही डीएनए वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चेंज कर रहा है, एक प्लाज्मिड की साइड से दूसरी प्लाज्मिड की साइड, क्रोमोसोम से प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से दोबारा क्रोमोसोम्स की साइड पर। इस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसपोसोम्स। तो ट्रांसफर कैसे होते हैं विद इन द सेल, डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है। सबसे पहले डीएनए अपनी एक कॉपी सिंथेसाइज करता है, वो कॉपी बैक्टीरियल क्रोमोसोम में किसी दूसरी साइड पर जाकर इंसर्ट हो जाती है, या फिर वो वाली कॉपी जो रेप्लिकेट करके न्यू कॉपी बनी हो प्लाज्मिड में जाकर इंसर्ट हो जाती है। सो ट्रांसपोसोम्स जो है वो विद इन द बैक्टीरिया मूव करते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम्स टू डीएनए से रेप्लिकेट होंगे, उसके बाद वो क्रोमोसोम्स में इंसर्ट हो सकते हैं या प्लाज्मिड पे जाकर इंसर्ट हो सकते हैं। Transfer of transposons to the plasmid and subsequent transfer of plasmids to enter the bacterium by conjugation. अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरह डेवलप होती है, जब ट्रांसपोजोन जो है वो ट्रेवल करता है टू द प्लाज्मिड्स और फिर प्लाज्मिड्स वन बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया में ट्रेवल कर जाते हैं। अगर वो ट्रांसपोजोन का पोर्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी कर रहा होगा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देगा। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए होती है जिसे हम कहते हैं बाय प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट। प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बैक्टीरिया जीन मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम अ साइलेंट स्टोरेज साइट्स वेयर द जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू एक्टिव साइट्स विद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अगर इस प्रोग्राम रीअरेंजमेंट्स का क्या मतलब है कि जीन अगर कोई भी सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस में एक जीन है और वो
जिस सीक्वेंस में, जिस पोजीशन पर, जिस लोकस पर पड़ी हुई है, जो उसकी लोकेशन है, वहां पर वो एक साइलेंट जीन है, वहां पर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो प्रोग्राम रीअरेंजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू वो जीन जो एक साइलेंट पोजीशन पर पड़ी है वो मूव करेगी एक ऐसी साइट ऑफ द डीएनए पर जहां पर एक्सप्रेशन सीक्वेंस है, डीएनए एक्सप्रेस कर सकती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सकती है। सो इस तरह क्या होता है, डिफरेंट जीन्स जो कि साइलेंट पड़ी होती हैं डीएनए पर वो एक्सप्रेस कर सकती हैं एंड वैरायटी ऑफ एंटीजेंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय डायग्राम। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पर। सो हेयर फिगर 4.1। इसमें हम देख सकते हैं जीन सीक्वेंस में फर्स्ट एक्सप्रेशन लोकस है एंड सेकंड पॉइंट पर जो है वो एक जीन पड़ी होती है जो कि साइलेंट लोकेशन है। सो रीअरेंजमेंट के थ्रू सेकंड वाली जीन जो है वो फर्स्ट वाले लोकस पर आकर इंसर्ट हो जाएगी सो दैट एक्सप्रेशन लोकस पर वो जीन एक्सप्रेस कर सके और अपनी एंटीजन एक्सप्रेस कर सके। सो दिस इज द एक्सप्रेशन प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट जो कि डीएनए का ट्रांसफर करती है विद इन द बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स। ये 3 मेथड से हो सकता है, इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब डीएनए सीक्वेंस का ट्रांसफर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कौन से ऐसे 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बैक्टीरिया अटेन करता है बाय द ट्रांसफर ऑफ डीएनए। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो मैंने आपको पहले भी बताया जीन्स जो है वो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम क्रोमोसोम से रेप्लिकेट होती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं प्लाज्मिड्स पर। सो प्लाज्मिड 2 बैक्टीरिया के दरमियान ट्रांसमिट हो सकता है। जब वो ट्रांसफर होगा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी कैरी कर लेगा बाय कॉन्जुगेशन। एंड सेवरल एक्सोटॉक्सिन जो कि बैक्टीरियोफेज की जीन्स में होते हैं वो ट्रांसडक्शन के थ्रू बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकते हैं। सो ट्रांसफर विद इन डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स से हमें 2 फायदा, बैक्टीरिया को 2 फायदे होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, सेकंड ये कि कुछ एक्सोटॉक्सिन जो है वो इनकोड हो जाते हैं बाय ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज द मेटिंग प्रोसेस बिटवीन द 2 बैक्टीरियल सेल्स। इसे कहते हैं डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, डोनर टू रिसिपिएंट। अब मेटिंग प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रिक्वायर्ड होती है, दैट इज फर्टिलिटी प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड्स। एफ प्लाज्मिड क्या होता है, एफ प्लाज्मिड्स कैरी द जीन ऑफ द प्रोटीन रिक्वायर्ड फ्रॉम द कॉन्जुगेशन। अगर किसी भी बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड एफ फैक्टर प्रेजेंट है तो इस एफ प्लाज्मिड पर कुछ ऐसी जीन्स पड़ी होंगी जो कि कॉन्जुगेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जीन पिलन जो कि सेक्स पिलस प्रोड्यूस करती है, पिलन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है एंड देन सेक्स पिलस प्रोड्यूस करती है। सेक्स पिलस क्या होता है कि सेक्स पिलस रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्जुगेशन। सो मेटिंग का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, मेटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले जो डोनर बैक्टीरिया होता है, जो मेल बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा वो अटैच कर जाएगा विद द फीमेल बैक्टीरिया जिसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। तो सो एक बैक्टीरिया मेल बैक्टीरियम, डोनर मेल बैक्टीरिया में एफ पॉजिटिव फैक्टर प्रेजेंट है एंड देन द रिसिपिएंट फीमेल बैक्टीरिया में एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, सो उसे हम लेबल कर देंगे एफ नेगेटिव से। इस तरह इसके बाद क्या होगा कि प्लस जो एफ फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें सेक्स पिलस प्रोड्यूस होंगे, सेक्स पिलस जो है वो अटैच कर जाएगा विद द फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ एज अ रिजल्ट। इसके बाद क्या होगा, एंजाइमेटिक क्लीवेज होगी एफ फैक्टर डीएनए की। सो एंजाइमेटिक क्लीवेज होगी डीएनए की, डीएनए का एक स्ट्रैंड बाय द ब्रिज जो सेक्स पहले ब्रिज बनाएगा दोनों बैक्टीरिया के दरमियान, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगा टू द रिसिपिएंट सेल। इस तरह क्या होगा उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के थ्रू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा इन बोथ रिसिपिएंट एंड डोनर सेल्स, क्योंकि डोनर ने अपना हाफ एक टेम्पलेट वन साइड ऑफ द डीएनए जो है वो ट्रांसमिट कर दिया टू द रिसिपिएंट फीमेल सेल्स। सो दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के थ्रू दोनों बैक्टीरियाज में जनरेट हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शंस। रिसिपिएंट इज आल्सो नाउ एफ पॉजिटिव मेल, सो fertility factor F plasmid transmit हो गया from the male to the female recipient bacteria, so recipient bacteria भी F positive male बन जाएगा, so it's also capable of transmitting plasmid। इस तरह जो है वो ये जो recipient bacteria है वो F positive male bacteria बन गया और उसमें भी एबिलिटी है कि वो प्लाज्मिड को ट्रांसमिट कर सके टू द नेक्स्ट बैक्टीरिया। Only the F factor, not the chromosome, has been transferred. Chromosome, bacterial chromosome का ट्रांसफर नहीं होता, only a portion that carrying F factor is transferred from one bacteria to another. Next है some F positive cells have F plasmids integrated in bacterial DNA. अब कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होते हैं जिनका एफ प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ होता है, इंटीग्रेट हुआ होता है बैक्टीरियल डीएनए में, सो दीस सेल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर क्रोमोसोम इनटू अनदर सेल। इन सेल्स को हम हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल कहते हैं। इस ट्रांसफर में होता क्या है कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिसिपिएंट सेल में एंटर होता है। अब
इस सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के लीडिंग एंड पर, जो कि फर्स्ट एंटर होगा इन द रिसिपिएंट बैक्टीरिया, वहां पर एफेक्टर प्रेजेंट होता है, एंड देन फॉलोड बाय क्रोमोसोम्स, जो कि एंड वाली साइड पर या लीडिंग के बैक पर जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम लगा होता है। तो सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांसफर इज 100 मिनट्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 hour and 40 minutes. Mating results in the transfer of only a portion of donor chromosome. एक बैक्टीरिया का सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, क्योंकि जो अटैचमेंट सेक्स पेलिस के थ्रू ब्रिज बनता है दो बैक्टीरिया के दरमियान, वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। सो जो डोनर सेल की जीन्स होती हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं थ्रू एफ प्लाज्मिड, वो सेवरल साइट्स ऑफ रिसिपिएंट डीएनए में इंटीग्रेट कर जाती हैं। इस तरह कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो इस प्रोसेस के थ्रू जो एफ फैक्टर के अराउंड एडजेसेंट जो बैक्टीरियल जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो भी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट न्यू रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो डेवलप होता है इन द रिसिपिएंट, और एक स्टेबल कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जिससे वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं इन द रिसिपिएंट बैक्टीरियल डीएनए। हम कॉन्जुगेशन को डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन की डायग्राम यहाँ शो की गई है। So this is F positive donor bacteria that have F plasmid fertility component है, and this is F negative recipient. So plasmid, a portion of plasmid of F positive donor DNA, पहले सबसे पहले क्या होगा, conjugation के लिए sex pillars, जो F positive का sex pillars है वो bridge बनाएगा with the F negative cells, then plasmid transfer होगा from F positive cells to F negative cells, then complementary process के through complementary जो sequences होते हैं plasmid के वो complete हो जाएंगे। हाई फ्रिक्वेंसी कॉम्बिनेशन की भी डायग्राम बुक में अवेलेबल है, तो इसकी डायग्राम्स भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज द ये है एफ पॉजिटिव डोनर सेल्स, इसके बैक्टीरियल डीएनए में प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड एफ फैक्टर प्रेजेंट है। सो ये ट्रांसफर होगा टू द एफ रिसिपिएंट। सबसे पहले क्या होगा, इसकी कॉपी बनेगी डीएनए की, दैट इज ट्रांसफर टू द सेक्स ब्रिज टू द एफ नेगेटिव, एंड ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इस ट्रांसफर में साथ क्या होगा कि ये एफ फैक्टर जो है वो अपने एडिसेंट जीन्स को भी ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। So second mechanism by which the DNA is transferred between the two bacteria is transduction. ट्रांसडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होती है, बैक्टीरियोफेज के थ्रू होती है, बाय मींस ऑफ बैक्टीरियल वायरस। इसमें क्या होता है कि एक वायरस किसी भी बैक्टीरियल सेल्स में एंटर हो जाता है और उस बैक्टीरियल डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू अ न्यू वायरल पार्टिकल्स। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है। सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज आया है और उसने एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, अपना डीएनए प्रोजेनिफेज डीएनए जो है वो इंसर्ट कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया है, अपना डीएनए भी जो है वो डिग्रेड करके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया बैक्टीरिया का डीएनए भी। सो न्यू प्रोजेनी जब बैक्टीरियोफेज की बनी है तो सम कंटेन्स बैक्टीरियल डीएनए एंड मोस्टली कंटेन्स द वायरल डीएनए। सो दिस बैक्टीरियल डीएनए कंटेनिंग वायरस जब किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो सो ये बैक्टीरियल डीएनए जो है वो होस्ट सेल्स में इनकॉर्पोरेट कर देगा। होस्ट सेल का बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो इस ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियल डीएनए को भी जो है वो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा। सो वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया। इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया टॉक्सिन, बोtulinum टॉक्सिन, क्लोरा टॉक्सिन, इन सब की जीन्स जो है वो बैक्टीरिया फेज के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसड्यूस हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। देन ट्रांसडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और एक होती है स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होती है, फुल बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही वायरस के फ्रेगमेंट्स होते हैं वैसे ही बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स भी होते हैं। एज अ रिजल्ट जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो इन्फेक्टेड फेज में जा सकते हैं। जो नए प्रोजेनी बनेगी वायरस की उसमें डीएनए का फ्रेगमेंट भी हो सकता है, लेकिन डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो 1 in 1000 वायरस पार्टिकल में किसी एक में डीएनए का फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि any part of the bacterial chromosomes, any part of DNA fragment of bacteria can be incorporated in any virus. So specialized type of ट्रांसडक्शन क्या होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए एक साइज होता है और वो अपने साथ एडजेसेंट जीन्स को भी कैरी करता है, एंड देन वो इंसर्ट हो जाता है इनटू द सेल डीएनए। So next mechanism by which the DNA can be transferred from one bacteria to another is transformation. Transformation refers to transfer of DNA itself from one cell to another. ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह से हो सकती है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक लेबोरेटरी प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया डाई कर रहा होता है, कोई बैक्टीरिया ऐसी कंडीशंस में होता है कि उसने सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता, तो अपना डीएनए रिलीज कर देता है इन द इन्वायरमेंट, और वो जो रिलीज डीएनए होता है वो कोई भी रिसिपिएंट सेल जो है वो
अपटेक कर लेता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट डिजीज में यही होता है, जब भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया डाई कर रहा होता है, वो अपने डीएनए अपने आप से बाहर निकाल कर जो है वो प्लेस कर देता है, कोई भी दूसरा बैक्टीरिया उस डीएनए को ले लेता है एंड देन द डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू करते हैं। लेबोरेटरी में क्या होता है कि एक डीएनए में से एक बैक्टीरिया में से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड देन जेनेटिकली वो दूसरे बैक्टीरिया में इंड्यूस कर दिया जाता है। दिस इज द लेबोरेटरी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। When a purified DNA is injected to the nucleus of eukaryotic cell, this is called transfection. अगर वही बैक्टीरियल डीएनए एक प्योरीफाइड डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो इसे हम ट्रांसफेक्शन कहते हैं। ट्रांसफेक्शन को हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग में 1994 में डीएनए का एक्सट्रैक्ट किया गया था बाय फ्रॉम इनकैप्सुलेटेड स्मूथ न्यूमोकोकाई से एंड देन उसको ट्रांसफर कर दिया गया था नॉन इनकैप्सुलेटेड रफ न्यूमोकोकाई, सो दैट जो नॉन इनकैप्सुलेटेड रफ न्यूमोकोकाई था वो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म बन गया, सो दैट डीएनए ऑफ अ इनकैप्सुलेटेड स्मूथ न्यूमोकोकाई contains genes for the production of capsule, so the non-encapsulated organism also become capsulated. This is used as evidence that DNA was a genetic material. इस प्रैक्टिकल के बाद ये एविडेंस मिला कि डीएनए कंटेन्स अ जेनेटिक मटेरियल। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि कोई भी डीएनए जो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम डोनर टू द रिसिपिएंट सेल्स, वो रिसिपिएंट यानी होस्ट सेल्स के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर दिया। इस प्रोसेस से जो न्यू डीएनए बनता है आफ्टर इंटीग्रेशन, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन की दो टाइप्स हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस कॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें दो पीसेस ऑफ डीएनए that have extensive homologous region pair up and exchange by pieces by a process of breakage and reunion. So दो pieces of DNA जिसमें homologous regions हैं pair up हैं, जो दो pieces of DNA जिसमें same extensive homologous regions हैं, वो वहाँ से break down होते हैं, reunite करके ट्रांसफॉर्मेट हो सकते हैं। दिस इज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी होती है, इसमें होमोलॉगी नेसेसरी नहीं होती। सो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आपने याद करनी है उसमें टेबल है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। टेबल 4.1 कंपैरिजन ऑफ कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वन बैक्टीरिया इज ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेचर ऑफ डीएनए ट्रांसफर इज क्रोमोसोम भी ट्रांसमिट हो सकता है एंड प्लाज्मिड भी ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन के थ्रू क्या है, अ वायरस ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इज प्रोकैरियोटिक and nature of DNA transfer is either generalized transduction या specialized transduction. Generalized transduction में any part of any gene, any part of DNA sequence can be transduced, but in specialized transduction only certain genes can be transformed. Last is transformation. Purified DNA is taken up by the cells. किसी भी डेंट एंड डाइंग सेल बैक्टीरिया ने अपना डीएनए रिमूव कर दिया, वो डीएनए कोई बैक्टीरिया रीअपटेक कर ले, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं आइदर प्रोकैरियोटिक और आइदर यूकैरियोटिक, यानी कि वो डीएनए आइदर प्रोकैरियोटिक सेल्स ले सकते हैं या यूकैरियोटिक सेल्स ले सकते हैं, और एनी नेचर ऑफ डीएनए कैन बी ट्रांसमिट। सो हियर द चैप्टर 4 एंड्स। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे ज्यादा सवाल जो है इस चैप्टर में से आते हैं। यू शुड नो व्हाट इज म्यूटेशन, what are the mechanism, what are molecular changes that occur in the mutation, what are the causes of the mutation, chemicals के through, x-rays, UV rays, viruses किस तरह जो है वो किस तरह जो है म्यूटेशन कॉज करते हैं। डीएनए विद इन द बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफर होता है एंड आउट विद इन द बैक्टीरिया एंड बिटवीन द बैक्टीरिया डीएनए ट्रांसफर कैसे होता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। इनका कंपैरिजन आप अच्छे से याद करें। हाँ, ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।